Hello dear students, hope you may be fine. So in today's video we are going to take the next subtopic important derivations of equations of motion from velocity time graph. Velocity time graph को यूज़ करके हम करेंगे equation of motions derive. So from velocity time graph we will derive equations of motion. So let us see the figure. Consider an object moving along a straight line with uniform acceleration. हम एक ऑब्जेक्ट ये टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहाँ पर वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है ये, एंड ऑन दिस साइड इट इज़ टाइम रिप्रेजेंट करता है. सो कंसिडर ए बॉडी मूविंग along a straight line with uniform acceleration, moving with an uniform acceleration a. Let u be the initial velocity of the object and v be the final velocity of the object after time t seconds. So when the body reaches covers some time after t second, let its initial velocity be u and its final velocity be v. So a body moves. We are considering a body moving with along a straight line with uniform acceleration. The acceleration is uniform. That is why this line is straight, because the acceleration of the body is uniform. So it is initial velocity we are considering as u, and final velocity we are considering as v. After the body reaches from this initial velocity to the final velocity after covering some distance after time t seconds. So the velocity time graph of this motion is a straight line as shown in the figure. So जो velocity time graph जो है ये जो body का जो motion है, that जो body move करता है with uniform acceleration, the velocity time graph is a straight line. So let us derive the first formula, derivation of v is equal to u plus at. So we know slope of the velocity time graph of uniform accelerated motion represents the acceleration. जैसे हमने बच्चों पहले भी हमने पढ़ा, जो हमने पहली वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब हमने पढ़ा तो वो हमें पता है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन. गोदे जो भी स्लोप है यहाँ पर ये एंगल बनाता है टाइम एक्सिस के साथ, जो ये स्लोप यहाँ पर बनता है द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम, दिस स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ द बॉडी रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन. वो एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है. सो वी कैन राइट दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वो जो ये स्लोप है यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, यही एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी रिप्रेजेंट करता है. So that is given by a acceleration slope of the velocity time graph. And if we consider a triangle is formed here, यहाँ पर एक ट्रायंगल बनती है. If we consider this angle as theta, जो ये लाइन जो है velocity time graph का जो लाइन यहाँ पर है, ये इनक्लाइन है to the टाइम एक्सिस, और यहाँ पर एक एंगल बनाता है टाइम एक्सिस के साथ, एंड यहाँ पर एक ट्रायंगल बनती है, राइट एंगल ट्रायंगल. सो the acceleration is equal to slope of velocity time graph, and that is equal to tan theta. From the figure it is given by tan theta, and tan theta किसके बराबर है? Perpendicular by base, that is BD by AD. So बच्चों from the figure we will see that tan theta acceleration बराबर है tan theta, that is slope of velocity time graph. But tan theta from the figure we are getting perpendicular by base, that is BD by AD. एंड दैट इज़ वो हम लिख सकते हैं, ये जो बी डी है, बी डी को हम लिख सकते हैं बी ई माइनस डी ई. वो ये जो बी डी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है, ये हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये दिस होल डिस्टेंस बी ई माइनस डी ई. वो होल डिस्टेंस को जब हम डी करेंगे माइनस तो हमें बी डी मिलेगा. सो बी डी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बी ई माइनस डी ई डिवाइड बाई ये जो ए डी है, ए डी और ओ ई जो है दे आर पैरेलल एंड इट रिप्रेजेंट द टाइम एक्सिस, ये टाइम रिप्रेजेंट करता है. सो वो ये बनेगा बी डी बाई ए डी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बी ई माइनस डी डिवाइड बाई ओ ई.
तो बी जो हम देखते हैं फिगर में, ये बी ई वो बराबर है, वो पैरेलल है सी ओ के बराबर। इसी तरह ये जो डी ई ये बराबर है ए ओ के बराबर। सो दे आर पैरेलल एंड इक्वल। सो वी राइट हेयर, फिगर को देखे बी ई माइनस डी ई डिवाइड बाई ओ ई, वो हम लिख सकते हैं सी ओ माइनस ए ओ, सी ओ बी ई minus DE, this is equal to CO minus AO from the figure. But CO minus AO, as CO represents करता है फाइनल वेलोसिटी V and AO रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी U and OE रिप्रेजेंट करता है टाइम T, OE represent टाइम T रिप्रेजेंट करता है. So we can write from here, so it will become A is equal to V minus U by T, और V माइनस U इज इक्वल टू A इंटू टी, और V बराबर है U प्लस ए टी. सो वी हैव डिराइव्ड दिस फर्स्ट रिलेशन A पार्ट, फिर हम B पार्ट भी करेंगे और C पार्ट भी करेंगे. A पार्ट में हमने डिराइव किया था रिलेशन V इज, ये हमने डिराइव किया रिलेशन V इज इक्वल U प्लस ए टी. ये हम कर रहे हैं, ये जो सब टॉपिक हमने आज इस वीडियो में हम लिया है, जो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि डिराइवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो ये फिगर को मैंने आपको एक्सप्लेन किया. सो पहला रिलेशन हमने इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डिराइव किया. पहले इक्वेशन ऑफ मोशन V इज इक्वल U प्लस ए टी. दिस इज A पार्ट. नाउ वी आर गोइंग टू टेक B पार्ट. B पार्ट में है डिराइवेशन ऑफ S इज इक्वल U टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर. सो ये इक्वेशन ऑफ मोशन, दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको डिराइव कर रहे हैं हम फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ. सो बच्चों उसी फिगर को हम ले लेंगे. वी नो द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. वो ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है, फिगर को हम दोबारा ले लेंगे. एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है, जो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी और डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. वो ये एरिया जो है, जो वेलोसिटी और टाइम के दरमियान जो एरिया है, जो कवर्ड, that is represents the distance covered by the object moving with the uniform acceleration. So from the graph हम देखेंगे एक्सेलेरेशन बराबर है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो हमने पहले भी इक्वेशन में किया. सो यहाँ पर एक्सेलेरेशन बराबर है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दैट इज tan थीटा. और फिगर में देखेंगे हम tan थीटा बराबर है dv बटा ad, जैसे हमने पहले फर्स्ट इक्वेशन में हमने आपको एक्सप्लेन किया है कि फ्रॉम द फिगर, ये जो है एक्सेलेरेशन जो है, दैट इज स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो फ्रॉम द फिगर दैट इज स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दैट इज tan थीटा, दैट इज bd बटा ad. सो db जो है, ये जो है db डिवाइडेड बाय ad, और ad के बजाय हम लिख सकते हैं OE. सो ये जो AD और OE पैरेलल है, वो इसको हम लिख सकते हैं db डिवाइडेड बाय ad, इसको हम लिख सकते हैं बराबर db डिवाइडेड बाय OE, db डिवाइडेड बाय OE. मगर OE टाइम रिप्रेजेंट करता है. ये जो OE जो ग्राफ में जो है, जो OE जो है, ये टाइम रिप्रेजेंट करता है, ये एक्सिस. सो वी विल राइट OE बराबर है T. सो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप बनता है db A इज इक्वल टू db बाई OE, बट OE इज रिप्रेजेंट्स टाइम, इसको हम T लिख सकते हैं. सो db बराबर है AT, इसको फर्स्ट रख सकते हैं. नाउ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम T इज गिवन बाय, और टाइम T में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है ऑब्जेक्ट, दैट इज गिवन बाय S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रिपेजियम OABE. सो फ्रॉम द फिगर हम देखेंगे द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम T इज गिवन बाय S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रिपेजियम OABE. ये जो ट्रिपेजियम यहाँ पर बनता है, वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम T इज गिवन बाय S इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रिपेजियम AO, दिस इज OABE हम लिख सकते हैं, या OEBA लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. गो दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रिपेजियम OABE, ये एरिया ऑफ द ट्रिपेजियम जो है, दैट विल गिव अस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम T. तो एरिया ऑफ द
ट्रिपिज्म बराबर है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। यहाँ पर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल OAD ही है। वो ये एरिया ऑफ द ट्रिपिज्म जो है, ये जो OABE जो एरिया ऑफ द ट्रिपिज्म है, दैट इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल OADE। वो ये रेक्टेंगल है, यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADB। सो ये जो ट्रिपिज्म का जो टोटल एरिया है, दैट इज़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल AODE प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADB। सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल किसके बराबर है? बेस इंटू अल्टीट्यूड। सो जो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल है, दैट इज़ OA इंटू OE। वो इस रेक्टेंगल का एरिया जब हम निकालेंगे फिगर में, ये बनेगा दिस साइड इंटू दिस साइड, वो OA इंटू OE। सिमिलरली एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल किसके बराबर ये बनेगा? 1/2 ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, वो बनेगा 1/2 ऑफ DB इंटू AD। सो वही हमने यहाँ पर लिखा, एरिया ऑफ द ट्रिपिज्म OAB वो बराबर है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल OAD प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADB, दैट इज S इज इक्वल OA इंटू OE प्लस 1/2 of DB into AD, area of the triangle. This represents area of the triangle. This will represent the area of the rectangle. This will give the complete total area of the trapezium OAB. और S is equal to UT। OA किसके बराबर है? OAU के बराबर है, OET के बराबर है। So from the figure we will refer again to the figure. This OA है U के बराबर and OE है T, टाइम रिप्रेजेंट करता है, so बनेगा UT। so यहाँ पर हम देखेंगे OAU रिप्रेजेंट करता है और OET रिप्रेजेंट करता है, प्लस 1/2 ऑफ DB हमने ऊपर निकाला AT के बराबर, ये उसको हमने फर्स्ट रखा था, वो DB हमें AT के बराबर निकला, AT इंटू AD किसके बराबर है? AD भी T के बराबर है। अब यहाँ पर देखेंगे ये ADB जो है, AD पैरेलल है OE को, सो ये टाइम रिप्रेजेंट करता है, सो ये भी टाइम रिप्रेजेंट करता है, ये T के बराबर है। सो यहाँ पर हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया, ये बनेगा S इक्वल टू UT प्लस 1/2 ऑफ AT इंटू T, ये बनेगा S इक्वल टू UT प्लस 1/2 ऑफ AT स्क्वायर। सो OA के बराबर U आएगा, OE के बजाय T आएगा, प्लस 1/2 ऑफ फार्मूला का AT जो है DB AT के बराबर है, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में निकाला ऑलरेडी, इंटू AD जो है OA के बराबर है, दैट इज T, टाइम रिप्रेजेंट करता है, वो ये सेकंड रिलेशन हमने डिराइव की, S इक्वल UT प्लस 1/2 ऑफ AT स्क्वायर। So this is the second equation of motion we have derived from velocity time graph. Now we will take third equation of velocity, equation of motion. Distance traveled by object in time v square minus u square is equal to 2as। इस रिलेशन को हमने निकालना है। हमें पता है डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल t इज गिवन बाय द एरिया ऑफ द ट्रिपिज्म, जो हमने ऊपर निकाला यहाँ पर। गो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम t, दैट इज गिवन द एरिया ऑफ द S इक्वल एरिया ट्रिपिज्म OAB। सो वही दोबारा हमने यहाँ पर क्या करना है, वो ये जो है ये हमें इस फार्मूला में को डिराइव करने के लिए लगेगा, दैट इज़ एरिया ऑफ ट्रिपिज्म OAB, वो S इक्वल टू दैट इज़ 1/2 ऑफ EB प्लस OA इंटू E। क्योंकि एरिया ऑफ द ट्रिपिज्म, अगर एरिया ऑफ द ट्रिपिज्म हम दोबारा देखेंगे, एरिया ऑफ द ट्रिपिज्म यहाँ पर रखेंगे, एरिया ऑफ द ट्रिपिज्म OABE जो है एरिया ऑफ द ट्रिपिज्म, वो होता है बराबर 1/2 ऑफ जो पैरेलल साइड से होता है, एडिशन ऑफ पैरेलल साइड को ऐड करते हैं, दैट इज़ EB प्लस OA इंटू OE। गो दिस इज़ 1/2 ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स प्लस बेस। दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रिपिज्म, दैट इज गिवन बाय हियर 1/2 ऑफ एरिया ऑफ द ट्रिपिज्म OAB, जो हम पूरा जब हम एरिया ऑफ द ट्रिपिज्म लेते हैं, दैट इज S इक्वल टू 1/2 ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू द जो परपेंडिकुलर साइड होता है और जो बेस होता है हम ले सकते हैं, वो बनेगा S इक्वल टू 1/2 ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू वन साइड, दैट इज 1/2 ऑफ EB प्लस OA अगर फिगर में देखोगे वो बराबर है, वो ED के बराबर है, क्योंकि OA और ED जो फिगर में देखोगे वो पैरेलल और इक्वल है। OA की वजह हमने ED लिखा इंटू OE। सो ऑल्सो जो एक्सेलेरेशन है, दैट इज़ द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक्सेलेरेशन जो है वो दैट इज़ द स्लोप ऑफ द ग्राफ।
दिस इज स्लोप ऑफ द ग्राफ, जो भी एक्सेलरेशन यहाँ पर है दैट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये हमें यहाँ पर देगा, दैट इज इक्वल टू, ये हम फर्दर करेंगे, दैट इज इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा किसके बराबर है, ए इज इक्वल टू डी वी बाई ए डी, डी वी बाई ए डी, दैट इज इक्वल टू tan थीटा, वो डी वी बाई ए डी जो है tan थीटा रिप्रेजेंट करता है। और फर्दर हम इसको लिख सकते हैं, ये जो डी बी है ये हम लिख सकते हैं, ये डी बी जो हम बराबर लिख सकते हैं ई बी माइनस ई डी। अगर फिगर को अब देखोगे, जो पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया आपको, ये जो डी बी है वो हम लिख सकते हैं ई बी माइनस ई डी डिवाइडेड बाई ये ए डी जो है वो ओ ई के बराबर है, क्योंकि ए डी और ओ ई ये जो टाइम एक्सिस पैरेलल है और इक्वल है, और ये टाइम रिप्रेजेंट करता है। सो डी बी बटा ए डी को हम लिख सकते हैं ई बी माइनस ई डी डिवाइड बाई ओ ई। जब आप दोबारा फिगर को रिप्रेजेंट करते हैं, 2-3 बार मैंने आपको ये समझाया है, आई होप यू विल क्लियर इट फ्रॉम द फिगर। डी बी बाई ए डी वो बराबर है ई बी माइनस ई डी डिवाइड बाई ओ ई, ए डी की बजाय ओ ई है, क्योंकि ए डी और ओ ई जो है दो टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट करता है और वो पैरेलल भी है, को ए डी के बजाय हम लिख सकते हैं ओ ई। तो ये बनेगा, ये है यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि ये हम लिखेंगे ओ ई बराबर है, ये एक्सेलरेशन इसके नीचे रखेंगे, ये बनेगा ई बी माइनस ई डी डिवाइड बाई ए। वो सेकंड इक्वेशन हम फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे, पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर है, इक्वेशन फर्स्ट है एस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ई बी प्लस ई डी इंटू ओ ई। अब ओ ई के बजाय हम ये वैल्यू दे देंगे जो हमने निकाला, वो जो फर्स्ट इक्वेशन जो रिप्रेजेंट करता है एस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ई बी प्लस ई डी, वो जो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर है, फर्स्ट इक्वेशन जो हमने रखा था यहाँ पर एस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ई बी प्लस ई डी इंटू ओ ई। अब ओ ई का यहाँ पर हमने वैल्यू निकाला सेकंड इक्वेशन में, सो सेकंड इक्वेशन का वैल्यू जो ओ ई है उसका वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, ये फर्दर एस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ई बी प्लस ई डी इंटू ओ ई के बजाय हम लिखेंगे ई बी माइनस ई डी डिवाइड बाई ए। अब ये बनेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये देखो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये बनेगा 1/2 ऑफ 2 इंटू ए, ये 2 इंटू ए बाहर रखेंगे, अंदर बनेगा ई बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ई बी का स्क्वायर माइनस ई डी का स्क्वायर। ये बनेगा एस इज 1/2 ऑफ 1/2 ए। ई बी बराबर है वी, अगर फिगर में देखोगे ई बी वी के बराबर है, फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है, और ई डी जो है इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। वो ई बी जो है वो सी ओ के बराबर है, और ई डी जो है वो ए ओ के बराबर है। वो ई बी जो है ई बी इक्वल टू सी ओ, दैट इज फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है, वी स्क्वायर बनेगा ये, और ई डी जो बराबर है ए ओ को, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है, यू स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा एस इक्वल 1/2 ए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर है 2as। दिस इज द डिराइवेशन ऑफ द थर्ड इक्वेशन, ये हमने किया। आज हमने बच्चों 3 रिलेशन डिराइव किया, डिराइवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट किया। दिस इज बी पार्ट एस इज यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर, दिस इज ए पार्ट जो हमने किया डिराइवेशन ऑफ यू प्लस ए टी, और ये है इसका ग्राफ है वो, दिस इज डिराइवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो बच्चों, आई होप यू माइट अंडरस्टैंड इट इन ए वेरी बेटर वे व्हेन यू विल रिपीट द वीडियोज़ 1 और 2 टाइम्स। जब आप वीडियोज़ को रिपीट करोगे, साथ में जब आप नोट्स को कंसल्ट करोगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन ए बेटर वे। सो रिपीट द वीडियोज़ 1 to 2 times, 2 or 3 times, you will be able to understand in it better way. So आज हमने important question किया कि derivation of equation of motion from velocity time graph. Thank you very much. We will continue the videos.